રામ કબીર ભજનની શરૂઆત કરીએ. સૌને રામ કબીર. આજનો શુભ મંગલ અને પાવન દિવસ, ચૈત્ર માસના સુદ પક્ષની 9મી તિથિ, ભગવાન શ્રી રામના જન્મ દિવસે સૌને શુભકામના અને શુભેચ્છા. જય શ્રી રામ. મારી ઉઘડે ત્યાં સીતારામ દેખું, આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં સીતારામ દેખું. ધન્ય મારું જીવન કૃપાએની લેખું, ધન્ય મારું જીવન કૃપાએની સીતારામ સીતારામ રચના ઉચ્ચારે, સીતારામ સીતારામ રચના ઉચ્ચારે. રામનો આનંદ મારે અંતરે આવે, રામનો આનંદ મારે અંતરે આવે. રામાયણ હોય મારી અંતરની આંખો, રામાયણ હોય મારી અંતરની આંખો. રામે દીધી છે મને ઉડવાની પાંખો, રામે દીધી છે મને ઉડવાની પાંખો. આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં સીતારામ દેખું, ધન્ય મારું જીવન કૃપાએની લેખું. રામના વિચારો મારે અઢળક નાણો, રામના વિચારો મારે અઢળક નાણો. ગાવું મારે નિષ્દિન રામનું ગાણું, ગાવું મારે નિષ્દિન રામનું. રામ ભક્તો
શુદ્ધ ભક્તિ વધે મારી પૂર્ણિમા જેવી, શુદ્ધ ભક્તિ વધે મારી પૂર્ણિમા જેવી, સહુ સંતો આશીષ દેજો રે એવી, સહુ સંતો આશીષ દેજો રે એવી. જેણે રામ રસ રટતા રટતા રે ચાખ્યો, જેણે રામ રસ રટતા રટતા રે ચાખ્યો, એણે સંસારને મિથ્યા કરી નાખ્યો, એણે સંસારને મિથ્યા કરી નાખ્યો. આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં સીતારામ દેખું, ધન્ય મારું જીવન કૃપાએની લેખું. એ રસ ધ્રુવ અને પ્રહલાદે ચાખ્યો, એ રસ ધ્રુવ અને પ્રહલાદે ચાખ્યો, એ રસ હનુમાને હૃદયમાં રાખ્યો, એ રસ હનુમાને હૃદયમાં રાખ્યો. એ રસ જાણે છે શબરીની ભક્તિ, એ રસ જાણે છે શબરીની ભક્તિ, સીતારામ દેતા સૌ જીવને મુક્તિ, સીતારામ દેતા સૌ જીવને મુક્તિ. આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં સીતારામ દેખું, આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં સીતારામ દેખું, ધન્ય મારું જીવન કૃપાએની લેખું, ધન્ય મારું જીવન કૃપાએની લેખું, ધન્ય મારું જીવન કૃપાએની લેખું. રામ કબીર. રામ કબીર ગિરીશભાઈ, બહુ સુંદર શરૂઆત અને સુંદર આધ્યાત્મિક વાતાવરણ. રામ જન્મના દિને તમે જે કર્યું એ બદલ શ્રી રામ કબીર ભક્ત સમાજ તમારો ઘણો ઘણો આભાર માને છે. થેન્ક યુ. રામ કબીર સર્વ ભક્તજનોને સાહેબ બંદગી. શ્રી રામ નવમીના શુભ દિને આપ સર્વને અમારા તરફથી શુભેચ્છા. આપણે આજે રામનવમીના દિવસે બધાને જ એક આપણા જીવનની અંદર રામ ભગવાનની જેમ કોઈ પણ મુશ્કેલીઓમાંથી નીકળવાનો રસ્તો પ્રભુ આપણને બતાવે અને આપણને આપણી પર આશીર્વાદ રાખે કે જેનાથી આપણે એ સફળ કાર્ય સિદ્ધ કરી શકીએ. હવે આજનો પ્રોગ્રામ ઘણો લાંબો છે, માટે હું શરૂઆત આપણે આજના જે આપણા સ્પીકર છે એમને બોલાવીને હું ચાલુ કરું છું. સો આજના સ્પીકર આપણા વારાણસી બનારસ જ્યાં કબીર મઠ છે તે કબીર મઠ થી આપણી સાથે જોડાયા છે. એમનું નામ છે શ્રી ભગીરથજી.
આપણે જેમ કબીરજી આપણને કહી ગયા છે કે જીસ પંથ તું ચલના વોહી પંથ સવાર, અને એટલા માટે જ આપણા કબીરજીનું જ્ઞાન લઈને આપણી સાથે આજે જોડાય છે. જેઓ વારાણસી મઠથી છે, વારાણસીમાં કબીર મઠ છે ત્યાંથી છે જોડાતા, અને એઓ ડોક્ટર ભગીરથજી નામ છે. એ પોતે પીએચડી ની ડિગ્રી ધરાવે છે, અને એમના ગુરુ આચાર્ય ગંગા શરણ શાસ્ત્રીજી, જે આપણી કબીર પંથમાં 23rd આચાર્ય તરીકે ગણાય છે. એમનો જન્મ છત્તીસગઢની અંદર થયો હતો. પછી આશ્રમમાં જોડાયા આપણા, અને આશ્રમમાં એ 9 વર્ષની સાલથી જોડાયા છે. કબીર મઠ વારાણસીમાં તમને કહ્યું તેમ ત્યાં જ છે, અને એમનું સંન્યાસ નામ એમનું ભારતદાસ છે. એમનું તમને કહ્યું એમ પ્રમાણે કે પીએચડી કર્યું છે એમણે, બહુ એકેડેમિકલી પણ બહુ સિદ્ધ પ્રાપ્ત કરી છે. અને આધ્યાત્મિકમાં તો આપણે જે પ્રમાણે જે અત્યારે જે જગ્યાએ છે એ પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને તમે સાંભળ્યા પછી પણ તમે નક્કી કરી શકશો કે એમનું આધ્યાત્મિક અચીવમેન્ટ કેટલું છે મોટું. એમને આ બધું આપણે જે પીએચડી ડિગ્રી હિન્દુ યુનિવર્સિટી વારાણસીમાં 2009માં એમને મળી હતી. અને આજે એટલે કે પીએચડી પછી એમણે કબીર કા દર્શનમાં જે પીએચડી કરી એની કરતા પણ આગળ વધીને એમણે બહુ જ દાર્શનિક જે બધા સંતોના છે કે એમનું દર્શન બધા સંતોનું, એના વિશે પણ એમનો ગુડ અભ્યાસ છે. એમાં આપણે જે પોસ્ટ ડોક્ટોરિયલ ફેલોશિપ એવોર્ડ કહેવાય છે, એ એમને ICPR યુનિવર્સિટી ન્યૂ દિલ્હી તરફથી મળ્યો છે 2015માં. અને એ વખતે એમનો સબ્જેક્ટ બહુ સુંદર સબ્જેક્ટ હતો, અને એ જેની અંદર જ્ઞાનનું આપણને દેખાય છે કે એ કેટલી બધી એમણે પ્રયાસ કર્યા હશે કે જેનાથી સબ્જેક્ટ એમણે જે સિલેક્ટ કર્યો છે એ કેટલો ગહન વિચાર આપણને આપી જાય છે. એમના સબ્જેક્ટનું નામ હતું કે ભક્તિ આંદોલન की दार्शनिक प्रति पृष्ठभूमि આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ કે ભક્તિ આંદોલનની દાર્શનિક પૃષ્ઠભૂમિ. અને એ પણ એમણે નામદેવજી, કબીર સાહેબ, રૈદાસજી અને ગુરુ નાનક દેવજી ના વિચારો અને એમના દર્શનોનો ગુડ અભ્યાસ કર્યો છે. એના વિશે છે. એમણે એકચ્યુઅલી એક બુક પણ પબ્લિશ કરી છે, અને એ બુકનું નામ છે રૈદાસજી. તો આમ એમનું આપણે જોયું તે પ્રમાણે શૈક્ષણિક જ્ઞાન પણ ઘણું છે, એમનું આધ્યાત્મિક નોલેજ પણ ઘણું છે. અને અત્યારે કબીર મઠ વારાણસીમાં એઓ ત્યાં રહીને આપણા જેવાને કે જે કબીરજીના જ્ઞાનના લાલસુ છે, જેમની તરસ છે, એ તરસ છીપાવવા માટે એઓ ત્યાંથી પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. તો આજે એમની સાથે પહેલા તો શ્રી રામકબીર ભક્ત સમાજ ઓફ USA તરફથી તમને ઘણું સ્વાગત, અને તમારા જ્ઞાનનો અમને જે લાભ આપો એ માટે અમે તમને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અને થેન્ક યુ ફોર કમિંગ એન્ડ ટેકિંગ ટાઈમ ફોર અસ. રામ સાહેબ. सबसे पहले कबीर साहब जी की कर्मस्थली, साधना स्थली से मैं आप सबको राम कबीर साहेब बंदगी, और ये बहुत ही आनंद का विषय है, खुशी का क्षण है कि हम रामनवमी के दिन राम और कबीर साहब के विषय में बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं. और राम तो हमारे जीवन के आधार हैं, हमारी भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत हैं, और संत परंपरा में जितने भी संत हैं सभी ने राम के विषय में बात की है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे. लेकिन मैं चाहता हूं कि आज हम लोगों की ये जो शुरुआत है उसमें हमारे एक संत हैं देवेंद्र दास जी,
एक राम पर उनका भजन होना चाहिए। कबीर साहब ने राम पर बहुत गान किया है, राम की महिमा को बखान बहुत किया है। तो मैं चाहता हूं कि आज जो शुरुआत है ये एक भजन से हो जाएगा, और फिर हम लोग हमारे गिरीश भाई जी ने तो बहुत सुंदर सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया, और हमारे जो साधक भाई हैं, सन्यासी हैं, वो भी साथ में रहते हैं। तो हम लोग कबीर साहब का ताना बाना जो है उसके माध्यम से कबीर साहब को रखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक भजन हो जाए और फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कबीर साहब, राम और पूरा क्या है उसका संबंध को। तो मैं देवेंद्र जी को बुलाता हूँ, वो एक भजन गाएंगे, उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी। ये हमारे साथी देवेंद्र जी हैं। जी। साहेब बंदगी राम कबीर। जी, मेरा नाम देवेंद्र दास है और मैं कबीर साहब के घर में कबीर चौरा में रहता हूँ। और मैं कबीर साहब के भजनानंदी हूँ और कबीर साहब के भजनों को एक नए ढंग से और डफली बजा के गाता हूँ। सो इस मीट में हम कबीर साहब के कुछ साखी दोहे जो आप सबने सुना है, अच्छा, और भजन, और मैं आप सबों के बीच में रखना चाहता हूँ। मेरे अवगुण भरा शरीर, अवगुण है भरा शरीर मेरा, कैसे तारोगे मेरे राम, कैसे तारोगे मेरे राम, कैसे तारोगे मेरे राम, कैसे तारोगे मेरे राम। मेरे अवगुण भरा शरीर, अवगुण है भरा शरीर मेरा, कैसे तारोगे मेरे राम, कैसे तारोगे मेरे राम। राम राम राम, राम राम राम, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी चाकरी, हाँ जैसी जिसकी चाकरी वैसा मुनसब दे, जैसी जिसकी चाकरी वैसा मुनसब दे। राम राम राम, राम राम राम, राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। राम राम राम, मेरे अवगुण भरा शरीर मेरा, कैसे तारोगे मेरे राम, कैसे तारोगे मेरे राम। राम राम राम, राम राम राम। आप सभी को राम कबीर साहेब बंदगी। तो आप सभी ने सुना, देवेंद्र दास जी ने राम की बात की, और एक कबीर साहब की साखी उसमें था। और हम लोग चर्चा करते हैं आज रामनवमी के शुभ अवसर पर कबीर साहब के राम पर। ये तो तय है कि आप सभी सुधी जन हैं, ज्ञानी लोग हैं, आप सब ने भी राम के विषय में
सुना होगा, जाना होगा, पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा, क्योंकि राम हमारे परंपरा से चले आ रहे हैं, परंपरागत रूप से हम जानते हैं। तो कबीर साहब की परंपरा में, कबीर साहब के विचार में, कबीर साहब के दर्शन में राम क्या है, राम कौन है, राम का महत्व क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। राम पर बात करने से पहले मैं एक कहानी से अपनी बात शुरू करूंगा, और वो कहानी है भक्तमाल में। भक्तमाल भारत में भक्तों के, संतों के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण साहित्य है, और भक्तमाल लिखा है नाभा दास जी ने। उसमें बहुत सारे भारत के भक्तों, संतों का जीवन परिचय, उसमें नाभा पद्मनाभ जी का वर्णन आता है। श्री पद्मनाभ जी से संबंधित एक कहानी है जो आज के हमारे विषय से जुड़ा हुआ है। पद्मनाभ जी काशी में रहते थे, कबीर साहब के साथ समय बिता रहे थे, कबीर साहब के शिष्य थे, और प्रतिदिन गंगा स्नान को जाते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि गंगा के किनारे लोगों की बहुत भीड़ लगी है। जाकर नजदीक उन्होंने पता किया कि आखिर भीड़ क्यों लगी है। तो लोगों ने बताया कि प्रभु जी, एक व्यक्ति है और उसको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। तो बीमारी क्या है? बीमारी उसको है, कोढ़ की बीमारी हो गई है, जिसमें शरीर गलने लगता है, जगह जगह से शरीर खराब होने लगता है। परिवार के लोगों ने उसे घर से निकाल दिया है और वो गंगा जी में डूबकर मरना चाहता है। पद्मनाभ जी उसके पास गए और बोले कि भाई, क्या बात है? तो उसने कहा कि आप तो संत हैं, आप महापुरुष हैं, आप चाहें तो मेरा उद्धार हो सकता है। घर के लोगों ने मुझे भगा दिया, मैं डूबकर मरना चाहता हूं, लेकिन जीवन की आशा है, मैं डूबकर मर नहीं पा रहा हूं क्योंकि जीवन का मोह है, आप कुछ कीजिए। तो पद्मनाभ जी ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, तो बहुत सहज बात है, सरल बात है, तो क्या करना है? तो पद्मनाभ जी ने कहा कि आप 3 बार राम राम कहो, गंगा में डुबकी लगाओ, देखो क्या होता है। तो सेठ जी ने वैसा ही किया, 3 बार राम 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 उन्होंने कहा, डुबकी लगाई, और डुबकी लगाकर निकले तो देखा कि उनका शरीर एकदम पहले की तरह स्वस्थ हो गया है, बीमारी का कोई निशान नहीं है, एकदम सुंदर स्वस्थ। अब तो गंगा के किनारे पूरा पद्मनाभ जी का जय जयकार होने लगा। लोगों ने कहा कि वाह, पद्मनाभ जी बहुत पहुंचे हुए संत हैं, इन्होंने एक कोढ़ी का रोग दूर कर दिया। पद्मनाभ जी को भी, जैसे हम संत लोग हैं, जीवन में क्या होता है, कभी कभी जब कोई बड़ाई करता है तो मन में खुशी आ जाता है, मन में थोड़ा अहंकार आ जाता है, हम मानव व्यवहार है, साधना करने के बाद भी वो पीछे लग जाती है। तो पद्मनाभ जी को अंदर बड़ा आनंद हुआ कि मैंने आज एक बड़ा काम किया है, क्योंकि राम मंत्र ने साक्षात प्रमाण दिया है कि किसी कोढ़ी का कोढ़ दूर हो गया, रोग दूर हो गया। अंदर से वो खुश होते हुए कबीर साहब से मिलने पहुंचे कि चलता हूं, मैं कबीर साहब को राम नाम की महिमा बताऊंगा कि मैंने क्या किया है। पद्मनाभ जी चलते जा रहे हैं, पीछे पीछे लोगों की भीड़ है, क्योंकि एक बड़ा काम हुआ है। जैसे ही कबीर साहब की कुटिया में आए, उन्होंने कबीर साहब को बंदगी किया और कहा कि साहब, आज मैंने काम किया है। क्या किया? मैंने एक सेठ को पुनर्जीवन दिया है। क्या दिया? वो डूबकर मरने वाला था, कोढ़ की बीमारी थी, तो मैंने उसे 3 बार राम राम कहने के लिए कहा और गंगा में डुबकी लगवाई, वो ठीक हो गया। पद्मनाभ जी को भरोसा था कि कबीर साहब खुश होंगे कि उनका चेला, उनका शिष्य एक बड़ा काम करके आया है, लेकिन इसका उल्टा हुआ। कबीर साहब बहुत नाराज हुए। उन्होंने पद्मनाभ जी को कहा कि तुमने राम के नाम की महिमा को घटाया है। क्यों घटाया? जिस राम के रा कहने से, राम 2 अक्षरों से मिला है, रा म, तो रा कहने से ये पृथ्वी उलट पलट हो जाएगी,
उस राम मंत्र में इतना सामर्थ्य है कि केवल उसका आधा अक्षर, शब्द का एक अक्षर अगर हम कहें, रा कहें, तो क्या होगा, ये धरती उलट पलट हो जाएगी। और तुमने 3 बार राम नाम कहला दिया। तुमने राम नाम की महिमा को कम करके आका है। और आप ऐसा करिए कि फिर से राम नाम की साधना कीजिए। ये जो नाम है, राम है, वो परम तत्व का परिचय कराने वाला नाम है। कैसे? फिर पद्मनाभ जी ने एक पद कहा। क्या कहते हैं पद्मनाभ जी? कहते हैं, नाम महा निज मंतर, नाम ही सेवा पूजा। जप तप तीरथ नाम, नाम बिनु और न दूजा। नाम प्रीत नाम बैर, नाम कही नामी बोले। नाम अजामिल साखी, नाम बंधन ते खोले। अधिक नाम रघुनाथ ते, राम निकट हनुमंत कहो। कबीर कृपा ते पद्मनाभ, परम तत्व परिचय लहो। पद्मनाभ जी कहते हैं कि ये जो नाम ही है, नाम, राम का नाम, वही सेवा है, वही पूजा है, वही बंदगी है, वही सब कुछ है। वही क्या करेगा, हमें अपने से परिचय करा देगा, अपना बोध करा देगा। पद्मनाभ जी कहते हैं, कबीर कृपाते पद्मनाभ, परम तत्व परिचय लहो। मतलब राम का नाम परम तत्व का परिचय कराने वाला शब्द है, और कबीर साहब की कृपा से उस परम तत्व का बोध मैंने किया है, ये पद्मनाभ जी कहते हैं। अब बात आती है कि राम है क्या। कबीर साहब कहते हैं, रर्रा सब में रमी रहा, ताका नाम कबीर। जो सब में रमण कर रहा है, सब में रम रहा है। सब में कहने का मतलब क्या है? जड़ और चेतन दोनों में। इस दुनिया में 2 ही तरह के तत्व हैं, एक जड़ है, एक चेतन है। जैसे हम चेतन है, हमारे अंदर जो बोल रहा है वो चेतन है, ये शरीर जड़ है। तो 2 तरह के तत्व है, जड़ और चेतन। तो जड़ और चेतन सब में जो है, भाई जड़ में जो चेतना है, कॉन्शस है, वो अभी सुप्त रूप में है, उसकी जो चेतना है कम है। तो सब में वही, कबीर साहब कहते हैं, जो सब में रम रहा है, सब में रमण कर रहा है, वही राम है। राम कोई ऐसा एक आकार में हम बांध नहीं सकते, एक सीमा में बांधना, उस राम की महिमा को कम करके आंकना है। तो जो सब में रम रहा है, वही कबीर साहब की राम है। और राम है तो उसमें भी क्या है, कबीर साहब ने नाम की महिमा का बखान किया। नाम महत्वपूर्ण है, राम जो शब्द है वो महत्वपूर्ण है। अभी हम देखेंगे कैसे कबीर साहब ने उसको बताया। कबीर साहब कहते हैं कि ठीक है, राम है तो करना क्या है, निर्गुण राम जपहु रे भाई। निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। जो राम है वो क्या है, निर्गुण है। ये तो आप सब जानते होंगे कि कबीर साहब जिस राम की बात कर रहे हैं, जिस राम की चर्चा करते हैं, जिस राम के लिए उन्होंने इतना बखान किया, उसको निर्गुण कहते हैं। निर्गुण क्यों कहते हैं वो भी हम समझेंगे। तो कबीर साहब कहते हैं, निर्गुण राम जपो रे भाई। राम निर्गुण है, लेकिन फिर भी उसका जप करना चाहिए, वो जप का विषय है। क्यों? क्योंकि अविगत की गति लखी न पाई जाई। हम उसको क्या है, ऐसे नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि जब हम कहते हैं कि जो राम है वो सर्वव्यापी है, सब जगह व्याप्त है, तो जब वो सब जगह व्याप्त है तो हमारी जो इंद्रियां है, आंख है, नाक है, कान है, त्वचा है, जीभ है, और जो हम शब्द बोलते हैं, इनकी एक सीमा, लिमिट है। हमारी आंख कहाँ तक देख सकती है, उसकी लिमिट है। हमारे कान कितना डेसिबल जो आवाज है, ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक, उसकी भी एक लिमिट है। हमारी जो ये त्वचा है, स्किन है, इसका भी एक है, स्पर्श करता है। नाक जो गंध लेती है, जीभ जो स्वाद लेती है, ये सबकी एक सीमा है। तो जो सीमा है हमारी, हम उसको कैसे जान सकते हैं?
मुश्किल है ना हमारे लिए उसको, इस आंख से उसको देखना, तो उसको अनुभव करना है। कबीर साहब इसीलिए कहते निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। तो एक चीज हमें ध्यान देना है कि कबीर साहब जब निर्गुण कह रहे हैं ना, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसका कोई गुण नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि कबीर साहब ने राम की महिमा को घटाया, राम को निर्गुण कह देते हैं, उनका कोई गुण नहीं है। ऐसा नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं कि राम तो सर्वव्यापी है, सब जगह है, वो अनंत उनका विस्तार है, पूरा ब्रह्मांड उन्हीं का है। जब सब कुछ वही है, सारा ब्रह्मांड उन्हीं का है, तो हमारी ये जो जीवा है, ये जीवा कैसे उनके गुण को बता पाएगी? मुश्किल है ना। अच्छा देखिए, एक चीज और भी बड़ी समस्या है, भाषा भी एक बड़ा रोल निभाती है। भाषा में कई ऐसी भाषाएं जिसमें सब बातें हम नहीं कह सकते, उसकी भी लिमिट है ना, लैंग्वेज की भी लिमिट है। तो हमारी जो जीवा है उसकी लिमिट, ऊपर से लैंग्वेज, भाषा की लिमिट, भाषा की सीमा, तो सबकी सीमा होने के कारण हम उस राम तत्व का बखान कैसे करें? उसके गुण को हम कैसे सीमित सीमा में बांध नहीं पाएंगे। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। तो राम जप के विषय है। तो कबीर साहब कहते हैं जप से क्या होता है, जप करना चाहिए ना, तो राम राम जपना चाहिए। और एक बड़ी बात आपको बताएं कि हमारे संतों की जो परंपरा है, मध्यकाल के जो संत हैं, सभी ने नाम जपने की बात की है। अच्छा, नाम जपने में भी राम की बात की है। आपको आश्चर्य होगा, मीराबाई कृष्ण की भक्त थी। मीराबाई का जो प्रसिद्ध भजन है वो है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम जो है जपने का शब्द है। क्यों? क्योंकि वो ररंकार है और नाभि कमल से उठकर ऊर्ध्व की ओर जाती है। संतों ने कहा, जैसे हमारे यहाँ ओम एक है, ओम के विषय में आती है कि हम ओंकार जो ध्वनि है वही निरंकार ध्वनि है। तो संतों ने ओम के जगह राम को महत्व दिया कि सब कुछ राम ही है, और हम राम शब्द का जाप कर सकते हैं। तो वो हमारे नाभि से उठने वाला जो नाद है उसका वो एक तरह से प्रतिनिधित्व करता है। तो जाप हमको करना चाहिए। तो कबीर साहब कहते हैं जो जन जानी भजे जग जीवन, तिनका कतहु न नासा। हमको जप तो करना है लेकिन जान कर करना है। देखिए कबीर साहब कहते हैं कि जानकर हमको जप करना है। जानना क्या है? उस राम तत्व को जानना है। राम तत्व अंदर भी है, राम तत्व बाहर भी है। अंदर बाहर दोनों के राम का एकत्व हमको कर लेना है, उसको जान लेना है, तभी हो सकता है। कबीर साहब क्या कर रहे हैं? अजपा जाप जपो बिनु जिह्वा, मूल मंत्र आराध, अस्थिर ध्यान अमर चित आसन, लागे सहज समाध। देखिए वो जो राम शब्द का हम जाप कर रहे हैं, राम का जाप कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या होगा? जप से अजपा में परिवर्तित हो जाएगा। अजपा मतलब क्या है? एक तो हम प्रयास करके जपते हैं, सुमिरन करते हैं, माला लेते हैं, सुमरनी लेते हैं, हम कुछ दिन प्रयास करते हैं। ये हमारा प्रयास धीरे 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 हमारी आदत में शामिल हो जाता है और वो निरंतर चलते रहता है। जैसे हम सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए कोई प्रयास नहीं करते, वो चलता रहता है। हमारी जो पलक है वो निरंतर चलती रहती। तो उसी तरह ये जो नाम है, पहले जप होगा, जप खत्म होगा तो अजपा में चला जाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं अजपा जाप जपो बिनु जिह्वा। जिह्वा का भी काम खत्म हो जाएगा, जीभ काटने का कोई काम नहीं। अजपा जाप जपो बिनु जिह्वा, मूल मंत्र आराध, अस्थिर ध्यान अमर चित आसन, लागे सहज समाध। जिस सहज समाधि की बात कबीर साहब कहते हैं, संतोष सहज समाधि भली है, उसके लिए हमको राम को आधार बना के आगे बढ़ना पड़ेगा।
राम नाम पहले जप में आएगा, फिर वो अजपा हो जाएगा, और अजपा होगा तो क्या होगा, हमारे अंदर जो चल रहा है, ररंकार चल रहा है, नाभि कमल से उठ रही है, उसमें जाकर वो मिल जाएगा। अब कबीर साहब और आगे कहते हैं कि जो राम है, अब देखिए एक चीज और भी अभी हम सबको समझना है कि राम तो है, दशरथ के घर में भी राम हुए, जिनका 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। हमको समझना है कि ये कैसे एक तारतम्य जुड़ता है, और कबीर साहब को समझने में लोग कहाँ भूल कर जाते हैं। ये कहानी आपको बताऊंगा कि जब अयोध्या मंदिर का उद्घाटन हो रहा तो एक पत्रकार हमारे पास आए। उन्होंने कहा, आप हमें बताइए कबीर साहब के राम कौन है। हमने कहा, पहले आप तो माइक बंद करिए, क्योंकि आपका उद्देश्य हमें पता है। आप यही चाहते हैं कि बस आप कह दें कि कबीर साहब के राम दशरथ के राम नहीं, बस उसी बाइट को आप चलाएंगे। कबीर साहब के दर्शन को हमें गहरे से समझना होगा। सब कुछ राम है, कबीर साहब के लिए राम सब कुछ है, राम ही राम है, राम के अलावा कुछ नहीं है। फिर ये भेद हम कैसे करेंगे? तो कबीर साहब कह रहे हैं कि जो लोग, जैसे राम को लोग क्या है ना, एक खिलौना बना लिए लोग। लोग करते क्या है, समझदारी दिखाना चाहिए, तो कबीर साहब कह रहे हैं, माथे तिलक, हाथ माला। बहुत से लोग राम को पाने के लिए जो एक बाहरी रूप बनाते, माथे तिलक, हाथ माला, लोगन राम खिलौना जाना। राम कोई खिलौना तो है नहीं। लोग जो है उसको सही से समझते नहीं है। क्या करते हैं, जो जो बौरा तो राम तोरा, लोग परम कहे जन मोरा, तोरा न पाती पूजौ न देवा, राम भगति बिनु निष्फल सेवा। देखिए कबीर साहब ने कहा, न तो मैं फूल तोड़ूंगा, न पत्ती तोड़ूंगा, लेकिन राम की भक्ति के बिना मेरी जो सेवा है वो निष्फल है, बेकार है। जब हम फूल पत्ती तोड़ेंगे नहीं, कुछ चढ़ाएंगे नहीं, तो राम की भक्ति कैसे होगी? क्योंकि भक्त और भगवान का जो भेद अभी हमें समझ में आ रहा है, भक्त है, भगवान है। तो भक्त अपने भगवान को क्या चढ़ा सकता है? कबीर साहब तो कह रहे हैं कि फूल नहीं तोड़ना है, पत्ती नहीं तोड़ना है, लेकिन राम की भक्ति के बिना सारा कुछ निष्फल है, हमारा सेवा निष्फल है, हमारा कोई मतलब ही नहीं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं राम के बिना कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। कबीर साहब जिस भक्ति की बात कहते हैं वो भाव की भक्ति है। अब देखिए बड़ी समझ की बात है, जैसे हम भगवान को, राम को अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, फल अर्पित करते हैं, जो भौतिक चीजें, बाहरी चीजें हम अर्पित करते हैं, करना भी चाहिए, इसमें कोई निषेध नहीं है। लेकिन थोड़ा हम समझे कबीर साहब क्या चाहते हैं हमसे और क्या अर्पित करने की बात करते हैं। हम जिस फूल को अर्पित करते हैं, क्या वो फूल हमारा है? जिस फल को हम अर्पित करते हैं राम जी को, भगवान को, वो क्या फल हमारा है? ठीक है, खेत में हमने उगाया, मेहनत हमने की, तो भी वो खेत पेड़ हमारा क्या है? आप थोड़ा सोचिए इसको गहराई से, कबीर साहब कहना क्या चाहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि हमें भाव की भक्ति करनी है। अब जैसे आपको किसी ने कोई प्रसाद दिया और बोला लो, तो क्या होगा? अंदर कोई भाव नहीं है देने का, अंदर कोई प्रेम नहीं है देने का, लेकिन बस एक है कि आपको दे दिया, तो आपको कैसा लगेगा? हम अपने आराध्य, हम अपने इष्ट, अपने भगवान को जो चढ़ा रहे हैं, केवल चीजों को तोड़कर चढ़ा रहे हैं, और उसमें हमारी आस्था नहीं है, उसमें हमारा भाव नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। भाव की भक्ति में अपने अंदर की जो चीजें हैं उसको चढ़ा देना है। भाव की भक्ति में हम भावनाओं से अर्पित करेंगे फूल। अच्छा देखिए, राम जी हमारा क्या देखते हैं ना, हम लोग क्या समझते हैं कि हमारे बाहरी बाहरी कामों को देख रहे हैं वो। कबीर साहब कहते हैं, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी चाकरी तैसी मुनसब दे। राम बैठे ऊपर और वो देख रहे हैं नीचे। हम क्या है, जब हमारा कोई मालिक आता है
मान लीजिए हम किसी के अंडर में काम करते हैं तो हम आराम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मालिक आते हैं तो हम दिखाने के लिए काम करने लगते हैं। अब तो सीसीटीवी का जमाना आ गया, बड़ा मुश्किल हो गया बैठना, कैमरा लग गया, फिर भी हम उसमें कुछ कर लेते हैं। लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं कि भाई वो जो राम है वो सबको देख रहा है आप क्या कर रहे हैं। तो आपके केवल शरीर की क्रिया नहीं, आपके मन में क्या चल रहा है उसको भी वो देखते हैं, और जो मन में चल रहा है वही उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो हमें क्या है, अपने मन के भाव अर्पित करने हैं, अपने आप को अर्पित करना है, अपने आप को सरेंडर करना है, शरणागति करना है। किसके भक्ति में शरणागति का महत्व है। हम अपने को चढ़ा दिए। चढ़ाना क्या है, राम जी के हम मूर्ति में चढ़ बैठे हैं, फूल में नहीं। चढ़ाने का मतलब है ये भाव होना चाहिए कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा, मेरा कुछ नहीं है। मैं जो भी करता हूं आपको सुमर कर करता हूं, आपको ही सौंप देता, आप ही मेरी डोर हो, पतवार हो। जैसे आपने देखा ना, जो कठपुतली, कठपुतली देखा होगा आपने, पपेट शो। तो जो कठपुतली का डांस है उसमें क्या है, हमको तो दिखता है कठपुतली डांस कर रही है, लेकिन उसको नचाने वाला कौन है, कोई और है। तो उसी तरह राम जो है हमें नचाने वाला है, तो क्यों नहीं हम अपना सारा भार उनको सौंप दें। वही तो चाहते हैं कि हम जो कुछ भी है उन्हें अर्पित कर दें। उन्हें बाहरी पूजा की जरूरत उतनी नहीं है जितना हमारे स्वयं के भाव की जरूरत है। हमारे भावों की वो भूखे हैं, इसीलिए कहा जाता है भगवान भाव के भूखे हैं। हमारी भावनाएं उनको अर्पित करना चाहिए। तो राम की जो भक्ति है, कबीर साहब कहते हैं भाव की भक्ति है, और यहाँ पर ज्ञान की भी जरूरी है। ज्ञान की आवश्यकता है। देखिए भक्ति में कहीं भी ज्ञान, कबीर साहब ज्ञान का निषेध नहीं करते, ज्ञान जरूरी है। कबीर साहब कभी पढ़ने लिखने किसी स्कूल में नहीं गए, लेकिन फिर भी उन्हें ज्ञान मार्गी संत कहा जाता है। आप पढ़ेंगे विद्वानों में कहते हैं कबीर साहब ज्ञान मार्गी संत है। तो क्या कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं राम रतन जेहि पाइये, ज्ञान दृष्टि जेहि होए, ज्ञान बिना नहीं पावई, कोटि करे जो कोई। मतलब जो राम रतन को पाना है, जैसे मीराबाई कह रही थी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम रतन को पाने के लिए हमारे पास ज्ञान की दृष्टि होना चाहिए। ज्ञान की दृष्टि क्या है, ज्ञान की दृष्टि वो है कि हम सही और गलत का भेद कर सकें। जैसे हम अज्ञान में जब रहते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि सच क्या है। अज्ञान, जैसे अब मान लीजिए हमने, कबीर साहब में ज्ञान का मतलब अनुभव है। कबीर साहब क्या ज्ञानी होने का मतलब ऐसा नहीं कि हम बहुत किताब हमने पढ़ लिया, बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिया। कबीर साहब की दृष्टि में मैं तो अज्ञानी हो जाऊंगा। शास्त्रों को पढ़ना जरूरी है, पढ़िए, लेकिन शास्त्र केवल हमें सूचना देते हैं, संकेत करते हैं, बोध कराते हैं कि हाँ वो है। उसका मनन करना, उसका चिंतन करना, उसको अनुभव में लाना, ये जो है मूल काम है, यही ज्ञान है। जैसे अब हम कह रहे हैं कि गुड़, हमने कहा गुड़ के बारे में, गुड़ आप सब समझ रहे हैं ना, मीठा स्वीट, कोई भी स्वीट है। तो गुड़ हमने पढ़ा है कि गुड़ कैसा होता है, मीठा होता है, कैसे बनता है, सारी प्रोसेस हमने किताबों में पढ़ लिया, लेकिन हमने गुड़ खाया नहीं है। तो किताबों में जो पढ़ा वो जस्ट इंफॉर्मेशन है, सूचना है, ये ज्ञान नहीं है। कबीर साहब कहते हैं उस गुड़ को खा लेना, ये जो है ज्ञान है। तो कबीर साहब कहते हैं राम रतन जय पाइये, ज्ञान दृष्टि जय होए। भाई जिसके पास ज्ञान की दृष्टि होगी, मतलब जो अनुभव करता है उसको, जिसके अंदर भाव है, भावनाएं हैं, वो उस राम रूपी रतन को क्या करेगा, प्राप्त करेगा, अनुभूत करेगा। और ज्ञान बिना नहीं पावई कोटि करे, जो कोई ज्ञान के बिना उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। फिर कबीर साहब कहते हैं राम के नाई निशान बागा, ताका मरम न जाने कोई, भूख त्रिखा गुण वाके नाही, घट घट अंतर सोई। कबीर साहब कहते हैं कि जो राम है वो भूख
उनको भूख नहीं लगता, इसलिए बात अलग है। और उनको तीखा भी नहीं है, प्यास भी नहीं है, उसके गुण अनंत है, एक गुण तो है नहीं, लेकिन वो घट घट अंतर सोई। देखिए कबीर साहब जिस राम को कह रहे हैं वो क्या है, वो भूख त्रिखा धूप सबसे परे है, लेकिन वो क्या है, कहां पर है, घट घट अंतर सोई। मेरे घट में, आपके घट में, उसके घट में, सबके घट में वो सोया है। इसीलिए कबीर साहब जब काशी से मगहर जा रहे थे, आप सबको पता होगा ना, कबीर साहब ने काशी को छोड़ दिया। लोग कहते थे कि काशी मुक्ति का क्षेत्र है। तो कबीर साहब ने क्या कहा पता है, कबीर साहब कहते हैं, क्या काशी क्या मगहर उसर, जो पे हृदय राम बसे मोरा। अरे क्या फर्क पड़ता है, राम तो साथ हैं। काशी हो चाहे मगहर हो, काशी में मुक्ति मिलेगी, मगहर में मुक्ति नहीं मिलेगी। भाई राम अगर घट घट में है तो हम जहां जाएंगे वहीं राममय हो जाएगा, सब जगह राममय हो जाएगा। तो कबीर साहब कहते क्या काशी क्या मगहर उसर, जो पे हृदय राम बसे मोरा, जो कबीरा काशी मरे, तो राम ही कौन निहोरा। अरे उस राम की भक्ति का क्या मतलब है कि कबीर काशी में रहे। ये क्या है, एक ज्ञान की पुष्टि है। जब ये हमारे अंदर स्थिर हो जाएगा, जैसे ज्ञान आता है, सूचना आती है, लेकिन जब वो स्थिर कब होता है, जैसे गुड़ के बारे में हमने जाना, लेकिन गुड़ को खा लिया तो फिर और जानना शेष नहीं। राम को अगर हमने जान लिया, घट में बैठा है, प्रकट हो गया, जैसे अग्नि तो सब जगह है लकड़ी में, लेकिन वो प्रकट हो गई ना, मेहंदी में लाली है लेकिन वो प्रकट हो गई। तो जब प्रकट हो गया तो फिर क्या है, उसका कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जिस घट में वो प्रकट हो गया, फिर तो वो जहां है तहां राम ही राम है। तो कबीर साहब कहते हैं कि भाई वो जो राम है सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सब जगह है। तो लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि साहब आप जिस राम की बात कह रहे हैं, इतना कुछ बता रहे हैं, तो क्या वो दशरथ के राम नहीं है क्या? आखिर दशरथ के घर में जो राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जिनकी इतनी महिमा है, क्या वो राम नहीं है? उनके विषय में आप नहीं कहते? इसका समाधान बताइए कि कैसे वो उसको आप बताएंगे। तो कबीर साहब ने इसका बड़ा अच्छा समाधान दिया। कबीर साहब कहते हैं, जग में चारों राम है, जग में चारों राम है, तीन राम व्यवहार, चौथा राम सो सार है, ताका करो विचार। कबीर साहब कहते हैं ऐसा नहीं है भाई, ये बात अलग है अगर मैं कहता हूं दशरथ सुत त्यों लोकै जाना, राम नाम का मरम ना आना। देखिए राम का जो नाम है, शब्द है, वो नित्य है, और शब्द निर्गुण भी होता है। दो बातें हैं, शब्द नित्य है और शब्द निर्गुण है। मान लीजिए नाम तो किसी का भी रखा जा सकता है, वो बात अलग है, किसी भी शरीरधारी का नाम रखा जा सकता है, लेकिन जो शब्द है राम, वो क्या है, नित्य है और निर्गुण है। नित्य कैसे है, आज भी शब्द चला आ रहा है, वो कभी खत्म नहीं होता, शब्द कभी खत्म नहीं होता। दूसरा निर्गुण कैसे है, कोई भी शब्द अपने आप में निर्गुण ही होता है हमारे अपेक्षा से। जैसे मान लीजिए हमने कोई शब्द सुना लेकिन उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं है, तो निर्गुण ही हुआ ना, उसका अर्थ कोई मायने नहीं रखता, अर्थ हमारे हिसाब से अलग अलग हो जाता है। इसीलिए शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, शब्द समय समय के हिसाब से उसके अर्थ बदलते रहते हैं, सुनने वाले के हिसाब से उसके अर्थ बदलते रहते हैं, मीनिंग बदल जाता है, बोलने वाले के तरीके से मीनिंग बदल जाता है। एक ही शब्द को अगर किसी ने कोई अलग तरीके से बोला तो उसके अर्थ बदल जाते हैं, उसके भाव बदल जाते हैं। तो शब्द भी निर्गुण है, राम कहने से उसका निर्गुणत्व खत्म नहीं होता, राम कह देने से क्या हो जाए, उसका नित्यत्व खत्म नहीं होता, वो नित्य है और निर्गुण भी है। तो कबीर साहब कहते हैं, जग में चारों राम है, तीन राम व्यवहार, चौथा राम सो सार है, ताका करो विचार। तो उसका समाधान क्या है, प्रथम ही शालिग्राम है। भाई चार राम बोल रहे हैं तो बताइए चार राम कौन है। पहला क्या है, प्रथम ही शालिग्राम है, दूजे परशुराम, तीजे राजा राम है।
चौथे आत्म राम। पहला क्या है? शालिग्राम है। शालिग्राम जानते हैं? जो मूर्ति है भाई, पत्थर की मूर्ति भी राम है, शालिग्राम है। दूसरा क्या है? परशुराम भी राम है। देखिए सब राम है, शालिग्राम भी राम है, परशुराम भी राम है। तीसरा जो राजा राम है, राजा राम कौन है? अयोध्या के जो राम है, राजा हैं, जिनका आज हम रामनवमी मना रहे हैं, जिन्होंने अयोध्या में राज्य किया, राम राज्य की स्थापना की, उनके सारे गुण, आदर्श एक महापुरुष का जो गुण है उनके अंदर है, तो वो भी राजा राम भी राम है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि और भी आगे हमको जाना है। वो क्या? आत्म राम। आत्मा राम भी राम है, उसका हमको विवेचन करना है, उसको जानना है, आत्मा राम को जानना चाहिए। तो अब यहां देखिए कबीर साहब दो बात कह रहे हैं। एक कह रहे हैं व्यवहार, जग में चारों राम है, तीन राम व्यवहार। जो तीन राम है, शालिग्राम, परशुराम, राजा राम, ये क्या है? व्यवहार के राम है। चौथे जो राम है आत्मा राम, वो परमार्थ का राम है। व्यवहार क्या है, परमार्थ क्या है? जैसे हम व्यवहारिक जीवन में बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो रियल हो। कई बार हमें भ्रम होता है। जैसे मान लीजिए आप अंधेरे में हैं और अंधेरे में एक रस्सी को आपने सांप समझ लिया है। तो जब आप रस्सी को सांप समझते हैं तो क्या होता है कि आप सारा कुछ वैसा ही करते जैसे सांप के आने पर करते। आप डरते हैं, डंडा लाते हैं, टार्च लाते हैं। तो जब आपकी एक्टिविटी भी वैसे ही रहती है, सब कुछ वैसा ही रहता है। तो जब आप टार्च मारते हैं तो पता लगता है अरे ये तो रस्सी है, सांप नहीं है, है ना? लेकिन रस्सी आपको सांप दिख रहा था, रस्सी आपको सांप दिख रहा था और आप डर भी रहे थे, सारा कुछ आप लोगों को रोक रहे थे। लेकिन था ना आपके व्यवहार में क्या था? उस समय व्यवहार में रस्सी सांप के रूप में सही दिख रहा था, है ना? लेकिन वास्तव में क्या है? वो रस्सी था, यथार्थ में मेन में रस्सी था। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि भाई जैसे हम जगत व्यवहार में हैं, हम व्यवहारिक जीवन में रहते हैं, संसार में रहते हैं, तो संसार में हमें व्यवहारिक राम को नकार नहीं सकते हम। शालिग्राम भी राम है, परशुराम भी राम है, राजा राम भी राम है। लेकिन हमको इससे आगे जाना है, आत्म राम को जानना है, परखना है, उसका बोध कर लेना है। जब हम साधना में रहते हैं ना, तो हम व्यवहार से परमार्थ की ओर जाते हैं। ऐसा नहीं कि परमार्थ से व्यवहार की ओर आएंगे। जो लोग कबीर साहब को कहते हैं कि इस राम की निंदा कर रहे हैं, राजा राम की निंदा कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि कबीर साहब कह रहे हैं कि हम व्यवहार से परमार्थ की ओर जाएंगे। कोई पीएचडी किया हुआ व्यक्ति कहता है कि बहुत सिंपल है, मान लीजिए अंग्रेजी से मैंने पीएचडी किया तो कह दूंगा इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी सिंपल है। लेकिन कक्षा 1 के जो स्टूडेंट है उसके लिए क्या होगा? ये क्रमशः बढ़ने का मार्ग है। हम साधना में बढ़ते जाते हैं, धीरे 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 बढ़ते जाते हैं, आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। तो कबीर साहब यही कह रहे हैं कि हम व्यवहार से परमार्थ की ओर बढ़ें, किसी का विरोध न करें, क्योंकि वो भी एक आधार है, वो भी हमें आगे बढ़ने में सहायक हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि भाई जो आत्मा राम है, जो चौथा जो सार है, वो है क्या, उससे होगा क्या? तो कबीर साहब कहते हैं उस आत्मा राम को जब से मैंने विचार किया, जब थे आत्म तत्व विचारा, तब निर्वैर भया सब हिन में, काम क्रोध गही डारा। जब से मैंने उस आत्मा राम का परख किया, विचार किया, तो क्या हो गया? मेरा जो दृष्टि थी वो बदल गई। क्या बदली? अब मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। जब थे आत्म तत्व विचारा, तब निर्वैर भया सब इनमें, मैं सबसे बैर से परे हो गया, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। और मेरा जो काम था, कामनाएं थी, लोभ था, क्रोध था, मैं गुस्सा करता था, क्रोध था, वो भी खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया भाई? व्यापक ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है वो राम है, कबीर साहब का ना, व्यापक ब्रह्म सबनी में एके, सब में एक ही है, को पंडित को जोगी,
वो पंडित में भी है, जोगी में भी वही है। राणा रंक कवन सु कहिए, कवन वैद कौन रोगी। राजा में भी वही है, प्रजा में भी वही है, वैद में भी वही है, रोगी में भी। वैद देखिए रोगी की जान बचाता है, सब में वही है। इनमें आप, कबीर साहब कहते इनमें आप सब इनमें ना। राम हम में है, हम राम में है। इनमें आप सब इनमें, आप आपसु खेले। कोई भेद नहीं है, हम आपस में खेल रहे हैं। ऐसे जैसे मान लीजिए कोई नदी का पानी लेता है, घड़ा में भरता है, फिर पानी डाल देता है नदी में। घड़े को पानी को नदी में डाला, नदी के पानी को घड़े में डाला। इनमें आप सब इनमें, आप आपसु खेले। नाना भांति घड़े सब भांडे, रूप धरे धरी मेले। देखिए कबीर साहब कहते हैं हम सब जो लोग हैं, ये अलग अलग रूप हो सकता है, अलग अलग रंग हो सकता है, अलग अलग आकृति हो सकती है, अलग अलग भाषाएं हो सकती है, लेकिन हमारे अंदर जो वो तत्व है, आत्म तत्व है, वो एक ही है। नाना रूप लेकर वही अलग अलग रूप में हमें दिखाई देता है। जैसे नदी के जल को हम अलग अलग बर्तनों में रख दें। कबीर साहब ने साफ कहा ना, कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक। कुआं का पानी अलग अलग बर्तनों में भर दीजिए, पानी तो एक है, बर्तन सबका अलग अलग है। अलग अलग बर्तन हम सब हैं, अलग अलग हमारा शरीर है, लेकिन हमारे अंदर जो रमण कर रहा है वही राम आत्म तत्व है। कबीर साहब कहते हैं कि जब हम इस बात को समझ लेंगे तो क्या होगा। जाप मरे अजपा मरे। देखिए कबीर साहब ने इसको समझना है हमको। भाई राम तत्व है, हम जान लेंगे, अब तक नहीं जान रहे थे तो बात अलग थी, लेकिन जब उसको अनुभव हमने कर लिया, अपने घट में अपने हृदय में उसको महसूस कर लिया, तो क्या होगा। जाप मरे अजपा मरे, अनहद हूं मरी जाए। राम सने ही ना मरे, कहे कबीर समझा। सब मर जाएंगे, जाप भी मर जाता। जाप तो हम अभी कुछ दिन आप साधना करोगे, आप जाप शुरू करोगे तो समझ में आएगा, कुछ दिन बाद वो जाप जो है अजपा में परिवर्तित हो जाएगा। ये तो सरल दिखता है। तो जाप अजपा में लीन हो जाता है, लेकिन जो अजपा है वो भी खत्म हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। वो क्या है, जो अनहद है। अनहद क्या है। कबीर साहब ने कहा कि ये जो हमारा शरीर है, इसके अंदर बहुत सारे नाद हैं, बहुत सारे गुंजन कर रहे हैं। जैसे दुनिया में जो भी साउंड है वो टकराने से आते हैं। कोई भी साउंड है, मतलब उस पे आहत करना आहत, अनआहत। एक है आहत, आहत मतलब जब हम चोट करते हैं तब साउंड आता है। एक साउंड है जो बिना चोट किए आ रहा है। मतलब देखिए आप म्यूजिशियन को देखिए, चीजों को देखिए, कहीं भी अगर झरने की आवाज है तो कहीं ना कहीं पत्थर से टकरा रही है, आपस में कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपस में क्या है, टकराहट से आवाज आती है, उसको आहत नाद कहते हैं। दूसरा है अनाहद नाद। अनाहद नाद होता है जो हमारे शरीर के अंदर है, और साधक जब गहराई में डूबता जाता है, मतलब उसका जप खत्म हो जाता है, अजपा भी खत्म हो जाता है, तो क्या होता है, उसको अनहद नाद सुनाई देता है। जब हम साधना में बैठते हैं तो क्या, देखिए अभी हमको सुनाई क्यों नहीं देता, क्योंकि जो हमारा मन है ना, वो बहुत सारी चीजों से बहुत भारी हो गया है। हमारे अंदर की जो संवेदना सेंसेशन है उसको वो समझ भी नहीं पाता, क्योंकि इस आंख से उसको नहीं, जैसे हमारे शरीर में कहीं दर्द होता है ना, उसकी फीलिंग होती है हमें। तो दर्द क्या है, दर्द तो स्टार्ट होता है बहुत हल्के डॉट से, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा होता है तो हमें पता चलता है कि हाँ दर्द है। डॉक्टर कहता है कि ये तो ज्यादा आगे बढ़ गया है, स्टेज 1 से 2 हो गया, तब आपको पता चला। तो कभी कभी हम, अगर हमारा ये जो मन है अगर ये प्योर हो जाए तो क्या होगा, हम थोड़ी सी भी जो डॉट है ना उसको भी समझ पाएंगे। मतलब ऐसा थोड़ा सा भी दर्द होगा तो समझ पाएंगे। तो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में बहुत सारी नाद हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही है। ये साधना की बात है। तो जब आप उस गहराई में जाएंगे तो उस नाद को आप सुन पाएंगे। तो कबीर साहब कहते हैं ऐसा ना हो कि साधक उस नाद में ही रह जाए, क्योंकि उसकी ध्वनि एक अलग तरह की है। तो उस नाद से भी हमें आगे जाना है। अनहद हूं मरी जाए, लेकिन
राम सनेही ना मरे। राम का सनेही मतलब क्या है? राम का जो प्यारा है, राम से जो प्यार करता है वो नहीं मरता। क्यों नहीं मरता? भाई मरता क्या है? हमारा शरीर मरे, मेरा भी मरेगा, सबका, हमारे पूर्वजों का, आने वाले सबका। ये शरीर तो खत्म होगा, लेकिन जो हम हैं, जो घट घट में है, वो कहाँ मरेगा? वो तो मरता नहीं है। तो राम सन ही नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी चेतना में लीन हो जाएगा, अपने अवेयरनेस में लीन हो जाएगा, वो मरेगा नहीं। तो मूल बात ये है, कबीर साहब की साधना, कबीर साहब जो विचार दे रहे हैं राम को, उसमें होना क्या है? कबीर साहब कहते हैं कि राम में हमें एक हो जाना है। अब तक तो हम अज्ञान के कारण, भेद के कारण उससे अलग हो रहे थे, अलग दिख रहे थे, लेकिन राम में एक होना ही। तो होता क्या है? कबीर साहब कह रहे हैं, जा कारण जग ढूंढिया। हम बाहर ढूंढ रहे थे ना, पूरा दुनिया में। क्यों क्यों ढूंढते? पता है हम चीजों को बाहर क्यों खोजते हैं? क्योंकि हमारी सारी जो पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 सेंस नॉलेज ऑर्गन्स हैं, वो सब बाहर की ओर है। देखिए, आंख भी बाहर की ओर, नाक भी, जीभ भी, त्वचा भी। तो हम चीजों को बाहर खोजने की कोशिश करते हैं, कभी अपने अंदर खोजने की कोशिश हमने नहीं किया। कबीर साहब हमें बताना चाहते हैं कि भाई कभी हमको अपने अंदर भी झांकने की कोशिश करना चाहिए। कबीर साहब जिस राम को बाहर भी बता रहे हैं ना, वो अपने अंदर में भी है। तो कबीर साहब की जो साधना की यात्रा है, वो बाहर से अंतर की यात्रा है। जो चौथे राम की बात कह रहे हैं, जो सार की बात कह रहे हैं, कह रहे हैं जा कारण जग ढूंढिया, सो तो हृदय माही, पर्दा दिया भरम का, तोहे सूझे नाई। भाई हमको पता क्यों नहीं चल रहा? हम तो कह रहे हैं राम है, घट घट में है, सब जगह है, लेकिन उस राम का हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहा? वो राम दिख क्यों नहीं रहे हैं? उस राम का हम बोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने एक पर्दा लगा दिया है। और पर्दा क्या है? भ्रम का है, अज्ञान का, इग्नोरेंस का है। तो भ्रम और अज्ञान के कारण जब हो जाता है ना, तो जो भ्रम है, भ्रम में क्या होता है? हम रस्सी को सांप समझने लगते हैं। यही तो बात है। हमारा जो जीवन है, हम जीवन में क्या है? कबीर साहब कह रहे हैं कि हमें सही ज्ञान पाना चाहिए, हमारी दृष्टि सही ज्ञान दृष्टि होना चाहिए। ज्ञान दृष्टि का मतलब है जो जैसा है केवल उसको वैसा ही समझ लिया जाए, तब भी बात बन जाएगी। हम अभी क्या है, जो जैसा नहीं है वैसा भी समझ लेते हैं, बाद में हम कहते हैं ओ माय गॉड ये क्या हो गया, हम तो गलत समझ रहे थे। ऐसा होता है हमारे साथ, आप सबके साथ हुआ भी होगा। कबीर साहब कहते हैं कि उसको हमको बोध करने के लिए अपने अपने अज्ञान को, इग्नोरेंस को दूर करना चाहिए। और इग्नोरेंस बहुत अलग तरह का है। लोग क्या कह रहे हैं भाई? लोग कहते हैं कि हमें भगवान जो है तार कर ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? कबीर साहब कहते हैं, राम से सवाल करते हैं, कबीर साहब कह रहे हैं राम मोही तारी कहाँ ले जाइयो। भाई आप मुझे तार कर कहाँ ले जाएंगे? सो बैकुंठ कहाँ धो कैसा, सो मोही बताओ। वो बैकुंठ स्वर्ग कैसा है आप मुझे बताइए। तारण तरण तबे लग कहिए, जब लग तत्व न जाना। जो उस मूल तत्व को नहीं जानता वही इस बात को कहता है। कबीर साहब क्या कर, एक राम देखा सब हिन में, कहे कबीर मन माना। अरे जब मैंने राम को देख ही लिया तो ये तरने तारने की बात ही नहीं है ना। जब हम अलग रहते तब तो होता ना। जैसे मान लीजिए मैं नाविक हूं, नाव चलाता हूं, तो नाव चलाता हूं तो आप अलग है, मैं आपको बैठा के पार करा दूंगा। लेकिन नाव भी वही है, खेने वाला भी वही है, बैठने वाला भी वही है। तो फिर ये खे कर पार करने की जो बात है वो कैसे संभव होगा? नहीं। एक मेक मतलब एक हो जाना है। अभी तक हम इस इग्नोरेंस में है कि दुनिया में ड्वेलिटी है, दो है, दो तत्व है ना, वो एक है। कबीर साहब उस राम के माध्यम से उस एकत्व को बताना चाहते हैं कि हम कैसे उस एक तत्व को जान लें। लेकिन इसके लिए हमें आत्म तत्व का चिंतन करना पड़ेगा, अपने ऊपर अनुभव करना पड़ेगा, अपने को जानना पड़ेगा, खोज अपने से शुरू करनी पड़ेगी। अंत में कबीर साहब कहते हैं,
देखिए, हम आप सबका जो उद्देश्य है, राम कबीर की जो बात आप सब करते हैं, देखिए कबीर साहब ने कितनी अच्छी बात कही है। अंत में मैं उस बात को कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। कबीर साहब कहते हैं, राम कबीरा एक है, राम कबीरा एक है, दूजा कबहु न होए, अंतर टाटी भरम की ताते दिखे दोए। हम अगर प्रोसेस में हैं और हमें ये एकत्व का बोध नहीं होता, यूनिटी का बोध नहीं होता, हम एक हैं, तो इसमें क्या है, हमारा इग्नोरेंस है, अज्ञान है। जैसे एक रूम है, एक कमरा है, तो कमरे के दो पार्ट हो जाते हैं जब हम पर्दा लगा देते हैं ना। आप पर्दा लगा देंगे तो एक कमरा ही दो पार्ट हो जाएगा। तो जो राम है और जो कबीर है, जब हम अज्ञान में होंगे तो राम अलग हमें दिखेंगे, कबीर अलग दिखेंगे, ठीक ना। हेम भाई, आप अलग दिखेंगे, राम अलग दिखेंगे, हम अलग दिखेंगे, राम अलग दिखेंगे। ये हमारी दृष्टि का भेद है, इसी को हमको एक करना है। कबीर साहब चाहते हैं कि हमारी जो दृष्टि है, तो दुनिया को अलग अलग तरह से देख रहे हैं, हम एक दूसरे से भेद करके देख रहे हैं, वो नहीं। राम कबीरा एक है, ये ज्ञान की बात है। जब हम अज्ञान में रहते हैं, जब हम व्यवहार में रहते हैं, जगत में रहते हैं, तब हम भेद देखते हैं। राम और कबीर को अलग करके देखते हैं, जीव और आत्मा को अलग करके देखते हैं, जीव और ईश्वर को अलग करके देखते हैं। लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं, राम कबीरा एक है, दूजा कबहु न होए। ये कभी दो थे ही नहीं, दो हैं भी नहीं। भाई, गंगा जल अगर हम घड़े में भर लें तो गंगा जल नहीं है क्या? समुद्र का जो बूंद है, वो क्या समुद्र का अंश नहीं है क्या? अंतर नहीं है, बस हमारी जो समझ है, हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो देखने की दृष्टि है, उसमें प्रॉब्लम है। कबीर साहब कहते हैं, राम कबीरा एक है, दूजा कबहु न होए। कभी दो थे ही नहीं, अंतर टाटी भरम की, ताते दिखे दोए। भ्रम का पर्दा हटा देना है। और वो कैसे होगा? संतो भाई, ज्ञान की आई आंधी, ज्ञान की आंधी से वो पर्दा हटेगा। और ज्ञान की आंधी क्या है? अनुभव, सूचनाओं को प्रोसेस करना अपने अंदर, उसको जीवन में लाना, उतारना। हमारे महापुरुषों ने जो बातें कही, बताया, उसको हम प्रोसेस में लाएं, जीवन में लाएं, तो क्या हो जाएगा? राम और कबीर का एकत्व का हम दर्शन कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे, फीलिंग स्वयं के अंदर होगा। इसी के साथ आप सबको राम कबीर साहेब बंदगी। राम कबीर साहेब बंदगी। आपने बहुत अच्छे से हमें ये बताया कि राम जी, राम का मतलब। कहीं कभी दफा हमने ये सुना, हमारे कबीर विजडम में भी आगे भी आया था ये, हमने 3-4 बार लिया ये सब्जेक्ट को। आपने भी बहुत अच्छी तरह से आपका जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताते रहेंगे इसके बारे में। और आपको और देवेंद्र दास जी जो जिन्होंने हमें बहुत अच्छा सा भजन सुनाया, उन आप दोनों को हमारी ओर से, कबीर विजडम की टीम की ओर से बहुत 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 शुक्रिया। जी, आप सबको रामनवमी की शुभकामनाएं। आप सभी को धन्यवाद कि आपने हमें अवसर दिया। और हम आप सबके बीच आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ज्ञानी लोग हैं, उनके साथ संवाद करना हमारे लिए बेहतर है। आपको कितना हम बता पाए, कितना कह पाए, वो तो पता नहीं, लेकिन इस अवसर, आपने जो अवसर दिया, उससे मेरा ज्ञान पुष्ट हुआ, मुझे अच्छा लगा। और मैं अपने को धन्य मानता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया कबीर साहब के ज्ञान को देने का ना। इसके लिए आप सबको भी थैंक यू, धन्यवाद। ये आज वो क्या है कि जैसे आप तो इंडिया में हो और वहां पे तो बहुत रात हो चुकी है अभी, तो जी आज जी हम सिर्फ एक ही प्रश्न, एक ही क्वेश्चन एक कमेंट्स लेंगे। बाद में दूसरी दफा जब आएंगे तो वहां हम यहाँ से ही चालू करेंगे। जैसे आपका जो प्रवचन है, जो जिसके पास वो प्रश्न है वो ले आएंगे और हम बात करेंगे उसके बारे में। तो मेहरबानी करके आज ही एक ही बात सिर्फ लेंगे। सॉरी फॉर द क्वेश्चंस। काका राम कबीर। राम कबीर, सबने राम कबीर। जी, राम कबीर जी। भगवान दास जी, भगीरथ दास जी, आपका बहुत बहुत आभार।
खूब खूब आभार। आपने जो आज की दृष्टि में हमने बताया, ये राम क्या चीज है। राम और कबीर दोनों में कोई अंतर तो है नहीं, फिर भी व्यवहारिक बाबत में हम राम और कबीर को अलग कर सकते हैं। बड़ी गुड बात आज आपने कही है कि जो दशरथ के राम है और जो चार राम की बात आपने बताई, तो जो दशरथ के राम है उसके बारे में कई लोगों को कंफ्यूजन होता था, और मैं भी अब तक बहुत कंफ्यूज होता था, क्योंकि धर्मदास जी ने बड़ी अच्छी सेवा की है कबीर पंथ के लिए, मगर थोड़ा सा मुझे सवाल रहता था कि उसका जो राम था उसके बारे में, जो दशरथ राम है उसके बारे में उसका क्या कहना था। आप कुछ बताए कि उसके धर्मदास जी और दशरथ राम, उसके बारे में उसका क्या ख्याल था, आप कुछ कह सकते हैं? जी, देखिए, कबीर साहब ने दशरथ के राम के विषय में बात की। जरूर उन्होंने कई जगह उनका जो बीजक ग्रंथ है उसमें हाँ, उन्होंने कहा कि जो वो परम तत्व है। देखिए, एक तो कबीर साहब कहते हैं कि वो परम तत्व है, वो जन्म नहीं लेता, वो किसी घर में नहीं आता, वो तो एक माया का कार्य है। आपने सवाल किया तो इसमें मैं बता दूं, कबीर साहब कहते हैं कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। फिर कहते हैं कि वो जो है, वो जो राम है उसने न तो रावण को मारा, न तो वो लंका में गए, न वो दशरथ के घर आए, ऐसा उन्होंने बीजक में कहा। इसके पीछे रीजन ये है कि वो जो तत्व है ना, परम तत्व, वो किसी को मारता नहीं, जिलाता नहीं, वो किसी का वैरी नहीं, किसी का मित्र नहीं, वो सब समान भाव से है। ठीक ना? तो दशरथ के जो राम हैं, और लोक में व्यवहार में वही प्रचलित है, लोक व्यवहार में लोग जानते हैं, तो व्यवहार में राम ठीक है, आप उनको मान सकते हैं राम है। लेकिन कबीर साहब जिस राम को कह रहे हैं वो परम तत्व राम है। मतलब अगर उस परम तत्व को कहना होगा तो संतों ने राम शब्द से उसको अभिहित किया है, मतलब बताया कि वो राम है, हम कह सकते हैं। लेकिन ये साफ उन्होंने कह दिया कि दशरथ के जो राम है वो मेरा राम, मतलब व्यवहार राम है लेकिन परमार्थ राम नहीं है। परमार्थ राम हमारा आत्मा राम है, उसकी खोज करना जो सब में व्याप्त है। देखिए, रामचंद्र थे, आदर्श पुरुष थे, एक समय सीमा है उनकी ना। एक समय में आए, अयोध्या में थे, उन्होंने अपने कार्यों से जनता को संदेश दिया, अपने कार्यों से लोगों को एक रास्ता दिखाया, वो करके गए। तो ये जो आने और जाने का है उसको कबीर साहब ने माया का कार्य माना। तो जो उस आता जाता है वो साहब नहीं है। मतलब साहब, कबीर साहब कहते हैं जो परम तत्व वो आता जाता नहीं है, माया के अंदर में नहीं है, वो माया से परे है। तो हम कबीर साहब की दृष्टि से जो राम है, दशरथ के राम है, उनके विषय में यही कह सकते हैं कि कबीर साहब का जो आराध्य है, कबीर साहब जिस राम की बात कर रहे हैं, जरूर वो दशरथ के राम नहीं है, उससे आगे के राम है। वो जो सब घट में समाये हैं उस राम की बात कबीर साहब कर रहे हैं। થેન્ક યુ जी राम कबीर થેન્ક યુ सब। તો जी राम। આપ ફરી પાછું હું બધાને માફી માંગી લઉં છું કે આપણી પાસે સમય નથી, કારણ કે સંત લોકોની જીવન પણ એટલું જ વ્યસ્ત હોય છે, અને એ અત્યારે ઇન્ડિયામાં છે અને ઇન્ડિયામાં મધરાત્રિ થઈ ચૂકી છે, છતાં પણ આપણા માટે સુંદર સમય ફાળવી રહ્યા છે, એ બદલ એમનો ઘણો ઘણો આભાર. પરંતુ આ વિષય પર જેને કોઈને પ્રશ્ન હોય એ કબીર વિઝડમની ટીમને તમે આપો, તો ફરી પાછા જ્યારે આપણે ચાલુ કરીએ નેક્સ્ટ સેશન, જ્યારે તમને બોલાવીએ અને તમે તમારા સમય પ્રમાણે આવી શકો અમારી સાથે, ત્યારે તમે એ પ્રશ્નથી ચાલુ કરજો. અને આજની આપણે પૂર્ણ નથી રાખતા, એટલા માટે આને આપણે અધૂરું રાખીએ છીએ, આજે છોડીએ છીએ, કે જેથી તમે અમને હજી પણ આનાથી ડીપમાં ને ડીપમાં લઈ જઈ શકો. અને જેમ કે તમે આ સબ્જેક્ટ પર સારું એવું અમને ગુણ જ્ઞાન પીરસી શકો.
તો ફરી પાછા તમારો ઘણો ઘણો આભાર. તમારો સમય વધુ નથી લેતો અને આજે પણ અમે સમય થઈ ગયો છે અમારો. સો રામ કબીર સાહેબ બંદગી. जी राम कबीर साहेब बंदगी आप सबको. હવે આવતા સેશનની અંદર આપણી સાથે સાન એન્ટોનિયોથી આશાબેન ભક્ત આપણી સાથે જોડાશે અને આજે હું રામનવમીની ફરી પાછી શુભેચ્છાઓ. અને આપણે બધા જ એવું ઈચ્છીએ કે આપણા મનની અંદર રામ ભગવાનનો વાસ રહે. આપણે જેમ કે આપણને સમજાવ્યું હમણાં એ પ્રમાણે રામ તત્વ આપણે માટે સદાને માટે સાથ રહે અને એક અપરાશક્તિ આપણને પણ મળે એવી ભાવના સાથે આજને આ સેશન અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ. મંગલ ભવન અમંગલ હારી દ્રવહુ સુદશરથ અજીર બિહારી. રામ સિયા રામ જય જય રામ. રામ સિયા રામ જય જય રામ. રામ કબીર સાહેબ બંદગી.